हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हमारा थर्ड यूनिट एम्बेडेड फोर्थ यूनिट एम्बेडेड सिस्टम्स का रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हम लर्न करने जा रहे हैं अभी आर्टस कर्नल्स। ओके, सो मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूं। I hope slides are in front of you. You can able to see the slides. नाउ आर्टस कर्नल के बारे में हम आज लर्न करने वाले हैं। तो रिमेम्बर, अभी तक हमने आर्टस के अलग अलग टाइप्स भी देखे। ओके, लास्ट लेक्चर में आपको सॉफ्ट आर्टस और हार्ड आर्टस भी आपको बताया। ओके, नाउ अभी आर्टस का कर्नल और उसका क्या फंक्शनिंग रहता है, ओके, दैट वी आर गोइंग टू सी। ओके, नाउ सी, RTOS kernel is providing an abstraction layer that hides from application software the hardware detail of the processor set of processor upon which application software shall run. Okay, so remember, whenever we talk about the RTOS kernel, that RTOS kernel is abstracted. Okay, so that's why here it is hidden from application software and the hardware details of the processors. Okay, so here one diagram is shown to you, okay, along with that application software, RTOS and hardware. Okay, so in that you can able to see hardware and application software, okay, is linked with that RTOS. Okay, now we see what are the functioning of that RTOS. See, the central component of most operating system is called kernel. Okay, the central component of most operating system is called kernel. The kernel will manages the system resources, okay, and communications. So whatever the communication carried out by the you or the system or application software, that all these things are carried out by the kernel. Similarly, whatever the resources which will be handled by you, okay, or internal, okay, these resources are also managed by the kernel. Kernel will provide everything. Okay, so that's why the kernel provides the most basic interface between the computer itself and the rest of the operating system. Okay, so the kernel is responsible for management of the central processor. Okay, the kernel is responsible for the management of central processor. The kernel include the dispatcher to allocate the central processor, and it will determine the cause of an interrupt and it initiates its processing, and some provision for communication among the various system and user tasks currently active in the system. Okay, so these are the functioning as well as the use of the kernel. Now here you can see the functioning of the RTOS kernel are shown in the diagram. Okay, along with here I have written. See, first is the task management. The task management is the center. Okay, the task management is center of that RTOS. Okay, so that's why it will do the task synchronization and communication. Okay, it avoid the priority inversion. Similarly, it will do the task scheduling. Okay, टास्क को पर्टिकुलरली कब रन होना है, कब नहीं रन होना है, या कोई वहां इंटरप्ट अराइज हो गया है। टास्क बोले तो व्हाट इज टास्क, क्वेश्चन अराइज हियर, व्हाट इज टास्क? टास्क इज नथिंग बट एन प्रोसीजर. Whatever the procedure, whatever the program that you have written, that is called task. Okay, that is called task. Okay, तो टास्क एक छोटा मिनी प्रोग्राम रह सकता है, एक छोटा माइनर प्रोग्राम रह सकता है, या कोई एक आधी एक्टिविटी जो आपको कैरी आउट करनी है, रीड और राइट, वो भी वहां पर टास्क कहलाती है.
सो दैट्स व्हाई वो टास्क को पर्टिकुलरली रन करवाना, टास्क को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करवाना यहाँ पर आरटॉस कर्नल का काम रहता है। ओके, सिमिलरली यहाँ पर इंटरप्ट हैंडलिंग भी टास्क के द्वारा ही, ओके, आरटॉस कर्नल के द्वारा ही होता है। सिमिलरली मेमोरी मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट में नो वर्चुअल मेमोरी फॉर हार्ड आरटॉस टास्क। सिमिलरली एक्सेप्शन हैंडलिंग भी ये कैरी आउट करता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैरी आउट कर लेता है, डिवाइस आईओ सुपरविजन कर लेता है, टाइमर्स काउंटर को हैंडलिंग कैरी आउट कर लेता है। सो दैट्स व्हाई आरटॉस कर्नल्स फंक्शंस आर दीज। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज टास्क। ओके, सो टास्क is a program. Okay, task is what? Task is a thread. Okay, as I told you, task is a mini program, or it is a sub program written by you, or it will be a read or write routine. Okay, so that's why it is a program on a computer which can be executed and run. Okay, which can be, remember, which can be executed and run. A task is an independent thread. Okay, task is an independent thread of execution that can compete with other concurrent tasks. Okay, तो अभी सिस्टम में एक ही टास्क रन हो रहा है ऐसा नहीं, एक साथ 2 टास्क, 3 टास्क, 4 टास्क भी रन हो सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में उनको कॉन्करेंट टास्क कहा जाता है। ओके, यानी कैसा कि एक साथ 2 प्रोसेस रन हो रही है, एक साथ 2 व्हीकल चल रही है, तो वहां हम कहते हैं कि वहां 2 व्हीकल कॉन्करेंटली यहाँ पर रन हो रही है। तो वैसे ही यहाँ पर 2 प्रोग्राम एट अ टाइम रन हो रहे हैं, तो 2 प्रोग्राम एट अ टाइम रन हो रहे हैं, तो उसको हम कॉन्करेंट टास्क कह सकते हैं, कॉन्करेंट रन ऑफ प्रोग्राम भी कह सकते हैं। सो दैट्स व्हाई रिमेंबर, अ टास्क इज एन इंडिपेंडेंट थ्रेड of execution that can compete with other concurrent tasks for processor execution time. A task is schedulable. ओके, आप उसको शेड्यूल कर सकते हो। ऐसा है कि भाई मुझे यहाँ पर 11 बजे लेक्चर है या 11:50 को लेक्चर है, तो मैं मेरा यहाँ पर मेरा जो लेक्चर है वो शेड्यूल कर सकता हूँ। 11 बजे प्रॉपरली रन होना चाहिए, 11:50 को रन होना चाहिए। वैसा ही यहाँ पर टास्क है, तो टास्क को कब रन करवाना है ये आप डिसाइड कर सकते हैं। ओके, कब स्टॉप कराना है ये भी डिसाइड कर सकते हैं। So that's why task is schedulable. The design process for the real-time application involves splitting the work to be done into tasks. Okay, so design process for a real-time application involves splitting the work to be done into tasks which are responsible for a portion of the problem. Okay, which are responsible for the portion of the problem. याद रखिए। Okay, getting the meaning of the sentence. Okay, each task is assign a priority. सभी यहाँ पर जितने भी टास्क है उनको आप प्रायोरिटी असाइन कर सकते हो। प्रायोरिटी यहाँ पर A0 से लेकर 255 तक रह सकती है। ओके, इतने नंबर में प्रायोरिटी रह सकती है। जितना नंबर छोटा उतनी हाईएस्ट प्रायोरिटी, जितना नंबर बड़ा उतनी लोअर प्रायोरिटी। Okay, so that's why each task is assigned with a priority, its own set of CPU register and its own stack area. Okay, उसको खुद का CPU रजिस्टर रह सकता है और उसको उसका खुद का ओन स्टैक एरिया रह सकता है। डोंट बॉदर अबाउट इट। ओके, तो ये आपको यहाँ पर एक डायग्राम बता रहा हूँ। ये डायग्राम में देखिए यहाँ पर टास्क है, फॉर एग्जांपल टास्क को नाम भी है, आईडी भी है। ओके, जो सेंटर में है ना उसको बॉटम साइड में वो मेरा टास्क है, यहाँ पर उसके ऊपर नाम लिखा है टास्क नेम आईडी। ओके, अभी यहाँ डायग्राम को ही देखिए, मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। टास्क में देखिए लिखा है प्रोग्राम INT T my task राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रेस while 1 कर्ली ब्रेस प्रिंट, ओके, कर्ली ब्रेस एंड, कर्ली ब्रेस एंड। ये छोटा प्रोग्राम है, उसको हम कहेंगे टास्क रूटीन। ये है टास्क। ओके, ये टास्क की प्रायोरिटी आप डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पर 130 नंबर का उसका प्रायोरिटी अगर डिफाइन किया है। ओके, मैंने पहले ही कहा अगर नंबर यहाँ पर कम है तो उसको हायर प्रायोरिटी, नंबर ज्यादा है तो उसको लोअर प्रायोरिटी।
ओके, तो इसके हिसाब से यहाँ पर प्रायोरिटी रहती है। अभी ये जो टास्क है, ये टास्क को कौन कंट्रोल करेगा? ये टास्क को कंट्रोल करने के लिए टास्क कंट्रोल ब्लॉक यहाँ पर रहता है। तो इस वजह से यहाँ पर टीसीबी कहा गया है। तो टीसीबी में आपका वहां पर जो रूटीन है, टास्क रूटीन, उसको वहां पर लिखा रहता है कि भाई ये एग्जाम्पल करके ये नंबर है या उसका टास्क रूटीन यहाँ पर उसका नाम है। ओके, और उसको पर्टिकुलरली इतने लाइन है, इतने बाइट साइज है, उसका इतनी प्रायोरिटी है। ओके, उसको ये टाइम पे एग्जीक्यूट करना है, ये टाइम पे स्टॉप करना है, ये सब वो टास्क कंट्रोल ब्लॉक कैरी आउट करता है। अभी देखिए, आपको ये पता है कि भाई प्रोग्राम जब रन होता है, तो प्रोग्राम जब रन होगा तो उसको वहां पर मेमोरी रिक्वायर्ड रहेगी। जब रन होगा तो उसके साथ साथ उसमें जो रजिस्टर है वो रजिस्टर भी वहां डाटा होल्ड करेंगे। तो जैसे ही वहां कोई इंटरप्ट अराइज होता है, तो इंटरप्ट अराइज होगा तो वहां स्विचिंग कैरी आउट होती है। स्विचिंग कैरी आउट होगी, यानी एक आध बार अगर अपने टास्क को प्रायोरिटी अगर कम होगी तो अपना टास्क बैठ जाएगा, दूसरा जिसको हायर प्रायोरिटी है वो टास्क रन होगा। तो ऐसी अगर सिचुएशन आ गई तो आगे आपको वहां पर, और थर्ड डायग्राम बताइए, टास्क स्टैक। टास्क टैग का पर्पस क्या है कि जहां अपने को ऐसी सिचुएशन आ गई कि मुझे रुकने की जरूरत है, तो ऐसे सिचुएशन भी मुझे सीपीयू को, जहां मैं एग्जीक्यूट हो रहा था वो एग्जीक्यूशन, यानी जो सीपीयू को मुझे किसी को देना पड़ रहा है, क्योंकि मैं एग्जीक्यूट हो रहा था ना, जो टास्क मेरा है वो एग्जीक्यूट हो रहा था ना। लेकिन हायर प्रायोरिटी टास्क अगर आ गया है तो वहां पर मेरे प्रोग्राम को वहां पर स्टॉप होना पड़ा। अगर ऐसी सिचुएशन अगर अराइज हो गई तो ऐसे सिचुएशन में मुझे वहां वेट करना पड़ेगा, मेरे प्रोग्राम को वहां वेट करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में वो प्रोग्राम जैसे ही वेट करेगा तो ऐसे सिचुएशन में उसका जो रजिस्टर है, रजिस्टर की जो वैल्यू है, सीपीयू की जो वैल्यू है, एएलयू में जो वैल्यू है, वो वैल्यू सारी स्टैक में स्टोर आउट हो जाएगी। तो इस वजह से वहां टास्क स्टैक भी रहता है। तो टास्क स्टैक वहां पर रिक्वायर्ड रहेगा टू स्टोर द डेटा ऑफ द रनिंग और द स्टॉप टास्क, ओके, और द halted task or the delayed task or the running or the ready task, okay, or the pending or block task or interrupted task। ओके, तो अभी सिचुएशन आएगी कैसा, तुम रन हो रहे हो तो रन होते समय आपको यहाँ पर इस तरह स्टेट्स, वहां पर बाजू में जो टेस्ट स्टेट्स लिखी है ना, टास्क स्टेट्स, तो वो टास्क स्टेट्स में जाना पड़ता है। वो इसलिए जाना पड़ता है कि कैसा कि अपने को ऑल द टाइम सीपीयू अवेलेबल होगा ही ऐसी गारंटी नहीं है। सो दैट्स व्हाई वहां अपने को ये सिचुएशन से जाना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई पहली सिचुएशन है डॉर्मेंट, ओके, सेकंड है रेडी। बताता हूँ, वेट वेट, सभी सिचुएशन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जल्दबाजी नहीं करने की। ओके, तो मैं यहाँ नाम पहले पढ़ लू, फिर बाद में उसको बताता हूँ, जल्दबाजी नहीं करने के समझने में। सो दैट्स व्हाई पहली है डॉर्मेंट, सेकंड है रेडी, थर्ड है रनिंग, फोर्थ है डिलेड, फिफ्थ है पेंडिंग, सिक्स्थ है ब्लॉक और सेवंथ है इंटरप्टेड। ओके, तो इतनी सिचुएशन वहां पर टास्क स्टेट्स की बताई गई है। ओके, तो ये सारी आप कोई भी किताब पढ़ो उसमें ये सिचुएशन रहेगी। ओके, या उसमें कम ज्यादा हो सकता है। ओके, ठीक है, चलिए आगे की स्लाइड में चलते हैं। यहाँ आपको बताया कि भाई यहाँ कॉन्करेंटली एन नंबर ऑफ टास्क रन हो रहे हैं। तो कॉन्करेंटली मैंने कहा क्योंकि कॉन्करेंट यहाँ पर वर्ड अपन ने यूज किया ना इस स्लाइड में, तो कॉन्करेंट टास्क है ना, समझ में आया ना सबको। तो यहाँ देखिए, हम कॉन्करेंटली सेकंड जो बोला है, अ टास्क इज एन इंडिपेंडेंट थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन दैट कैन कॉम्पीट विद द अदर कॉन्करेंट टास्क फॉर प्रोसेसर एग्जीक्यूशन टाइम। सो दैट्स व्हाई यहाँ कॉन्करेंट, यहाँ सिचुएशन आपको शो की गई है कि यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, एन नंबर ऑफ टास्क रन हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल यहाँ या कोई जो सिस्टम हम एम्बेडेड सिस्टम है उसमें यहाँ आती है। तो यहाँ सबसे बॉटम में आपको बताया है सीपीयू रजिस्टर, ओके, या सीपीयू। ओके, जो सीपीयू है उसमें अंदर लिखा है एसपी और उसके बाजू में लिखा है कॉन्टेक्स्ट, ओके,
और वहां पे एरो के द्वारा वहां पर टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 को हाईलाइट किया है। अब ये सिचुएशन यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास सीपीयू है, सीपीयू में एएलयू रहता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर रहते हैं, तो आपको ये पता है सीपीयू का काम है टू डू द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। तो व्हाइल डूइंग दैट एग्जीक्यूशन हियर स्टैक पॉइंटर इज नीडेड। बराबर है, सीपीयू रजिस्टर आपको रिक्वायर्ड रहेंगे। बात सही है क्या नहीं बताओ, समझ में आया कि नहीं? ओके, अभी उसमें कॉन्टेक्स्ट ये क्या है, क्वेश्चन अराइज होगा, कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट है ने, यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, वो रन होते समय उसमें क्या रनिंग सिचुएशन है, यानी सीपीयू में रजिस्टर में क्या स्टेटस है, स्टैक पॉइंटर का क्या स्टेटस है, इंटरप्ट का क्या स्टेटस है, ये सारी जो बातें हैं ये कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट रहती हैं, इसीलिए उसे कहा गया है कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो जैसा ही आप टास्क 1 अगर रन करने जाओगे तो टास्क 1 की कॉन्टेक्स्ट रहेगी। ओके, अगर आप टास्क 2 रन करने जाओगे तो टास्क 2 की कॉन्टेक्स्ट अलग रहेगी, टास्क n नंबर की कॉन्टेक्स्ट अलग रहेगी। बराबर, अभी यहाँ जैसे ही आपको एरो के बारे में बताया है तो वहां वो हाईलाइट कर रहा है, वो डायरेक्शन दे रहा है टास्क कंट्रोल ब्लॉक। क्यों? क्योंकि टास्क कंट्रोल ब्लॉक ही एक ऐसा बंदा है कि वो टास्क को रन कब कराना और टास्क को कब स्टॉप कराना उसको ही पता है। उसको ही पता है कि इस टास्क की कितनी साइज है, उसको टास्क को कितना टाइम लगने वाला है, इस वजह से वो उसको पॉइंट आउट कर रहा है और उसको पॉइंट आउट करके वह टास्क कंट्रोल ब्लॉक को इनेबल और डिसेबल करता है और उसके अकॉर्डिंग वहां पर वो टास्क का एग्जीक्यूशन कैरी आउट होता है। समझ में आई भाई सिचुएशन सबको? किसी को नहीं रह समझा है तो बात बताओ। ओके ना, चलिए आगे चलते हैं। अभी यहाँ पर हमने जो यहाँ पॉइंट देखे हैं वो पॉइंट यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सभी पॉइंट यहाँ पर एक एक करके एक्सप्लेन किए हैं, डोंट बॉदर अबाउट इट, एक एक करके अच्छी अच्छी पढ़ो। ओके, पढ़ के यहाँ पर मुझे भी समझाते हैं, मैं भी समझाता हूँ और हम सब समझ लेते हैं। चलिए अभी डॉर्मेंट सिचुएशन जो है, डॉर्मेंट सिचुएशन यानी यहाँ पर ये थ्रेड की सिचुएशन है या टास्क की सिचुएशन है। ओके, इस डॉर्मेंट यहाँ पर ये पोजीशन रहती है, तो ये पोजीशन कैसी है, क्या है, ये देखते हैं। द डॉर्मेंट स्टेट करस्पॉन्ड्स टू अ टास्क दैट रिसाइड इन अ मेमोरी, यानी आपका प्रोग्राम मेमोरी में है, अभी मेमोरी में बैठा है, आप अभी क्यू में हो, आप अभी वहां मेमोरी में वहां वेट कर रहे हो, बट हैज नॉट बीन मेड अवेलेबल फॉर मल्टीटास्किंग कर्नल, यानी अभी आपका वक्त आया नहीं सीपीयू में एंट्री करने का। अभी आप यहाँ पर मेमोरी में आइडियल पोजीशन में आपका प्रोग्राम है, अभी आपको रन का चांस नहीं मिला है, आपको यहाँ पर ALU या सीपीयू को यहाँ लोड होने का चांस नहीं मिला है, तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर कही जाती है डॉर्मेंट सिचुएशन। देन सेकंड आती है यहाँ पर रेडी, और टास्क इज रेडी व्हेन इट कैन बी एग्जीक्यूटेड बट इट्स प्रायोरिटी इज लेस देन दैट ऑफ द टास्क करंटली बीइंग रन, यानी भाई सीपीयू में कोई रन हो रहा है लेकिन उसकी प्रायोरिटी से हमारी प्रायोरिटी कम है, यानी अपने से उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गई, इस वजह से वो रन हो रहा है, उसको चांस मिल रहा है वहां पर ALU और सीपीयू में वर्क कैरी आउट करने का, उसका जो प्रोग्राम है वो रन हो रहा है, और जैसे ही वो खत्म होगा तो अपना नंबर आने वाला है, अपना नंबर आ गया तो अपने को वहां पे जाने का चांस मिल जाएगा, वो निकल जाएगा। तो ये सिचुएशन है, यानी इसलिए यहाँ पर कहा अ टास्क इज रेडी when it can be executed but its priority is less than that of a task currently being run। ओके, तो वो रन हो रहा है अभी, अब यहाँ हमारा चांस आने वाला है, मेरे को भी अंदर जाने का चांस मिल जाएगा। सो इन दिस स्टेट द टास्क एक्टिवली कॉम्पीट्स with all other ready tasks for the processor execution time। ओके, ऐसी सिचुएशन में अपना जो टास्क है
वो क्या करता है, कंपटीशन कर रहा है। आप जैसे कंपटीशन करते हैं ना, चलो मुझे अभी यहाँ पर थिएटर में अंदर जाने का मौका मिल गया, मेरा मेरा नंबर आ गया, अभी मैं एंट्री करूंगा थिएटर में, बहुत सारा पिक्चर हिट है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, वाह 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 वाह, अभी मैं एंट्री कर रहा हूँ, मेरा नंबर है। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आ गई है। सो दैट्स वाई आपने बहुत सारी कंपटीशन करके टिकट निकाल लिया, और टिकट निकाल के अभी मुझे अंदर जाने का चांस मिल रहा है, मैं पिक्चर मूवी देखूंगा अभी, या मुझे ट्रेन में अंदर जाने का मौका मिल गया, तो चलिए मुझे यहाँ पर बैठने का मौका मिल जाएगा। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। The kernel scheduler uses the priority of each task to determine which task to move the running state. Okay, the kernel जो है वो कर्नल वहां पर शेड्यूलर को देखेगा, भाई उसके पास वहां पर टाइम टेबल दिया रहता है, उसको पता रहता है कर्नल को कि भाई अभी किसको देने का है एग्जीक्यूशन का चांस, उसको पता रहता है कि इसको इतना टाइम लगने वाला है, इसकी प्रायोरिटी ये है, और इसको ये रिसोर्सेस लगने वाले हैं। So that's why the kernel scheduler uses the priority of each task to determine which task to move the running state. Okay, वो उसको पता रह जाता है, वो टास्क कर्नल जो है उसको पता रहता है कि अभी ये टास्क का बंदा, ये टास्क वाला जो बंदा है ये उसको अंदर छोड़ने का है, यानी ये एएलयू और सीपीयू में एग्जीक्यूशन कैरी आउट कराएगा। गेटिंग? नाउ नेक्स्ट वन इज रनिंग, यानी अभी अपने को सही में अंदर गए, अंदर मैं मूवी देखूंगा, मेरा यहाँ पर मेरा वर्क हो रहा है, ये बात यहाँ पर आ गई, और टास्क इज रनिंग। अब वो प्रोग्राम जो था, वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करने का चांस मिल गया, उसको अंदर एएलयू सीपीयू के रजिस्टर सब मिल गए, और उसको डाटा उसको एग्जीक्यूट करने का चांस मिल गया, उसको रिसोर्स यूज करने का चांस मिल गया, वो रिसोर्सेस इन आउट कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग डाटा का मैनिपुलेशन कैरी आउट कर रहा है। ये सारी सिचुएशन वहां उसको समझ में आ गई। ओके, अब यहाँ पर टास्क इज रनिंग, और टास्क इज रनिंग व्हेन इट हैज कंट्रोल ऑफ द सीपीयू एंड इट्स करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड। ओके, उसको सीपीयू मिल गया, अंदर एएलयू मिल गया, रजिस्टर मिल गए, स्टैक पॉइंटर मिल गया, अभी वो वहां पर मेन बंदा हो गया, अभी उसको किंग हो गया वो, तो उसको मौका मिल गया सभी रिसोर्सेस हैंडल करने का, तो वो अभी यहाँ पर रन हो रहा है ऑन अ सिंगल प्रोसेसर सिस्टम। ओनली वन टास्क कैन रन एट अ टाइम। ओके, अगर सिंगल प्रोसेसर सिस्टम अगर रहा तो वहां पर सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होता है। ओके, तो सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन नहीं है अपने को कैरी आउट करना, अपने को यहाँ पर कॉन्करेंट पोजीशन यहाँ पर है, सो दैट्स व्हाई वहां हमें मल्टीपल प्रोसेसर रिक्वायर्ड रहेंगे सिस्टम में। सो दैट्स व्हाई ऑन अ सिंगल प्रोसेसर सिस्टम ओनली वन टास्क कैन रन एट अ टाइम। When a task is preempted by high priority task, it moves to the ready states। याद रखो, जब यहाँ पर टास्क प्रीएम्प्ट हो जाता है, उसको हायर प्रायोरिटी मिल जाती है, तो हायर प्रायोरिटी मिल गई तो इट विल मूव टू द रेडी स्टेट। वो रेडी स्टेट में चला जाएगा कि भाई अभी मैं यहाँ पर मेरा वर्क कैरी आउट कर रहा हूँ, करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर मुझे एग्जीक्यूट होऊंगा, मेरे को यहाँ पर सभी यहाँ रजिस्टर मिल जाएंगे, मैं यहाँ पर एग्जीक्यूशन कैरी आउट करूंगा, रिजल्ट जनरेट करूंगा। ओके, सो दैट्स व्हाई यहाँ सभी बातें उसके लिए अवेलेबल हो जाएगी। इट ऑल्सो कैन मूव टू द ब्लॉक स्टेट। ओके, अगर इन केस कभी अगर हायर प्रायोरिटी टास्क अगर आ गया, अपना यहाँ पर एग्जीक्यूशन हो रहा है, और एग्जीक्यूशन होते समय यहाँ पर कोई हाई प्रायोरिटी टास्क अगर आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में इट विल मूव टू द रेडी स्टेट, तो वो रेडी स्टेट में चला जाएगा। इट कैन ऑल्सो बी मूव टू द ब्लॉक स्टेट, वो ब्लॉक स्टेट में भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ी पता है कि मुझे यहाँ पर बाहर वाला जो डिवाइस है वो मुझे हेल्प करेगा, इमीडिएटली डाटा का जनरेशन करके देगा, मुझे वहां पर्टिकुलरली मेरा डाटा एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बताई है आपको। मेकिंग अ कॉल दैट रिक्वेस्ट एन अनअवेलेबल रिसोर्सेस, यानी अगर आपको वहां पर कोई रिसोर्स यूज करना है और वो रिसोर्स वहां पर अवेलेबल नहीं है, कोई अदर वाला प्रोसेसर वहां पर उसको यूज कर रहा है,
तो वहां पे डिफिशियंसी अगर रह गई रिसोर्सेस की, वहां पर रिसोर्सेस कम अवेलेबल है, तो आपको वहां पे वेट करना पड़ सकता है। अगर वेट अगर करना पड़ेगा, तो वैसे ही आप ब्लॉक स्टेट में चले जाओगे, आप वहां पे ब्लॉक हो जाओगे, कोई काम नहीं कर सकोगे, आप आइडियल हो जाओगे वहां पे, वहां समझ में नहीं आएगा कि अब मैं क्या करूं। तो ऐसी सिचुएशन वहां आ सकती है। उस सिचुएशन को ब्लॉक स्टेट कहा जा सकता है। और वहां अगर ब्लॉक स्टेट में रहे, तो आप ब्लॉक स्टेट में भी जाने का चांस रह सकता है। मेकिंग अ कॉल दैट रिक्वेस्ट टू वेट फॉर एन इवेंट टू ऑकर। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि भाई वो इवेंट हुआ ही नहीं अभी तक, वो इवेंट होने वाला है, या पर्टिकुलरली वहां पर वो टेम्परेचर जो सेंसर है, वो टेम्परेचर सेंसर ने टेम्परेचर सेंस ही नहीं किया। वो सेंस करेगा उसके पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसको कोई वहां पर टाइम पीरियड अलॉटेड होगा, तो वो टाइम पीरियड अलॉटेड में वो टेम्परेचर कैरी आउट करेगा, और टेम्परेचर कैरी आउट करके मुझे सेंड भी कर सकता है। सो दैट्स व्हाई मेकिंग अ कॉल दैट रिक्वेस्ट टू वेट फॉर एन इवेंट टू ऑकर। और एक सिचुएशन यहाँ पर ऐसी हो सकती है, वह सिचुएशन यहाँ, अगर आप यहाँ पर मेकिंग अ कॉल टू डिले द टास्क फॉर सम ड्यूरेशन, ओके, कोई ड्यूरेशन के लिए वहां पर आप वहां डिले इंट्रोड्यूस हो भी सकता है। ओके, नाउ अगर आप वहां वेटिंग पीरियड में चले गए, तो वेटिंग पीरियड में भी आप जाने का चांस रह सकता है। तो वेटिंग सिचुएशन क्या है? अ टास्क इज वेटिंग व्हेन इट रिक्वायर द ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। ओके, वेटिंग स्टेट के यहाँ पर आपको बोलती है कि भाई इट रिक्वायर द ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, यानी आप वहां पर किसी के लिए रुके हो, waiting for an IO operation to complete. Okay, a shared resources to be available, a timing pulse to occur, or time to expire. किसी को टाइम दिया होगा तो वो टाइम खत्म नहीं हुआ, या किसी को पर्टिकुलरली एक आधे टाइमिंग पल्स में वर्क कैरी आउट करना है, तो वो वर्क कैरी आउट कर रहा है। ऐसी सिचुएशन वहां आ सकती है। तो इस वजह से वहां पर वेटिंग कहा गया है। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट? ओके, नाउ आगे चलते हैं। एक और सिचुएशन यहाँ पर है ब्लॉक सिचुएशन। बहुत सारे बार हम ब्लॉक हो जाते हैं, बहुत सारी भूख लग जाती है। अ सीपीयू स्टारवेशंस ऑकर। ओके, अ सीपीयू स्टारवेशंस ऑकर, भूख लग गई भाई। व्हेन हायर प्रायोरिटी टास्क यूजेस ऑल ऑफ द सीपीयू। ओके, कोई हायर प्रायोरिटी टास्क है, वो हायर प्रायोरिटी टास्क सीपीयू का एग्जीक्यूशन टाइम यूज कर रहा है। अगर ऐसा सिचुएशन आ गया एंड लोअर प्रायोरिटी टास्क डू नॉट गेट टू रन, तो लो प्रायोरिटी टास्क अगर होगा, अगर अपना प्रायोरिटी कम होगा, तो अपने को चांस ही नहीं मिलेगा, हम वहां पर वेट ही करते रहेंगे। बराबर है ना? द केस व्हेन ब्लॉकिंग कंडीशन आर मेड। ओके, आपका यहाँ पर कुछ केसेस बता रहा हूं कि उसके द्वारा आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि यहाँ ब्लॉक कंडीशन आ सकती है, ब्लॉक हो सकते हैं। क्यों ब्लॉक होंगे? तो सी, अ सेमेफोर टोकन फॉर विच अ टास्क इज वेटिंग इज रिलीज। ओके, और सीमेफोर, सीमेफोर यानी हम आगे चल के लर्न करने वाले हैं। उसमें सीमेफोर है, मैसेज है, क्यू है, ये सारी बातें हम लर्न करने वाले हैं। तो उसमें अ सीमेफोर टोकन फॉर विच अ टास्क इज वेटिंग इज रिलीज। ओके, a message on which the task is waiting arrive in a message queue, or a time delay imposed on the task expire.
ये सिचुएशन यहाँ पर है, उसमें से मैं यहाँ बता रहा हूँ कि भाई यहाँ अगर कोई यहाँ आईओ डिवाइस है, आईओ डिवाइस अगर वर्क कैरी आउट नहीं कर रहा है, पर्टिकुलरली वो डाटा गैदरिंग कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप उसे कह सकते हो ब्लॉक सिचुएशन अराइज हुई। ओके। या कोई आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस को डाटा दे रहे हो, वह डाटा देने में आपको वहां पर डिले हो रहा है, या पर्टिकुलरली एलसीडी है, एलसीडी में आपको डाटा डिस्प्ले कराना है और एलसीडी बिजी है, उसको वो पर्टिकुलरली डेटा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन वहां ब्लॉक सिचुएशन कंसीडर की जा सकती है। ओके, गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट पे अभी ब्लॉक और वेटिंग के बारे में? आखिरी सिचुएशन है यहाँ पर इंटरप्ट सर्विस रूटीन। अभी इंटरप्ट सर्विस रूटीन ये तो कॉमन सिचुएशन है, ये ऑलरेडी हमने माइक्रो प्रोसेसर में डिस्कस की थी, माइक्रो कंट्रोलर में भी आईएसआर रूटीन आपने डिस्कस की है। ओके, जस्ट यहाँ पे रीड करता हूँ। अ टास्क इज इन आईएसआर स्टेट when an interrupt has occurred and the CPU is in the process of servicing the interrupt. ओके, तो यहाँ इंटरप्ट सर्विस रूटीन अगर आ गई तो ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे भी हायर प्रायोरिटी टास्क आ गया, हाई प्रायोरिटी टास्क आ गया, तो उसके वजह से वहां पर हम वेटिंग में या ब्लॉक सिचुएशन में चले गए। हमारा जो टास्क है वो वेटिंग या ब्लॉक सिचुएशन में चला गया, उसके वजह से हायर प्रायोरिटी वहां पर प्रोसेसर एंटरटेन करेगा। ओके, उस वजह से यह आईएसआर सिचुएशन का नरेशन दिया है। ओके, अभी ये सब डायग्रामेटिकली आपको बताया है। देखिए यहाँ पर ये डायग्राम में आपको डॉर्मेंट, रेडी, ब्लॉक, एग्जीक्यूटिंग और टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड यानी सस्पेंड हो गया, पूरा खत्म हो गया, टास्क कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये सिचुएशन यहाँ पर बताई है। ओके, तो टास्क कब एक्टिवेट हुआ है, टास्क कब टर्मिनेट हुआ है, इवेंट कब अराइव हुआ है, ओके, या फिर टास्क कब शेड्यूल हुआ है, टास्क रिलीज प्रोसेसर और टाइम स्लाइसिंग exhausted, okay, या टास्क इज वेटिंग फॉर इवेंट आईओ और रिसोर्सेस, ये सारे जो पॉइंट्स है ये इस डायग्राम के द्वारा आपको शो करवाने हैं। ओके, सभी लोग ध्यान दें, यहाँ पर ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अगर अब यहाँ पर ये सिचुएशन यहाँ रहेगी तो देखिए, हम डॉर्मेंट रहती है तो डॉर्मेंट क्रिएट यानी टास्क क्रिएट किए तो वह टास्क यहाँ पर पहले सिचुएशन रहता है, उसको फिर बाद में डॉर्मेंट में आता है, डॉर्मेंट में आने के बाद वो रेडी सिचुएशन में चला जाता है, रेडी से हम आगे चलते हैं एग्जीक्यूशन में, एग्जीक्यूशन से फिर से रेडी में भी जा सकता है, ब्लॉक में भी जा सकता है, या फिर टर्मिनेट भी हो सकता है। तो अगर आपने कंप्लीट कर लिया साइकिल, टास्क अगर कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया तो वो डायरेक्टली टर्मिनेट हो जाएगा। अगर टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो अगर वहां पर कुछ प्रोसेसर का टाइम अगर एग्जॉस्ट कर गया तो ऐसे सिचुएशन में वो रेडी में फिर से जा सकता है, या अगर वो वेट कर रहा है किसी डिवाइसेस के लिए तो वो ब्लॉक सिचुएशन में जा सकता है। अगर वो ब्लॉक सिचुएशन जल्दी कंप्लीट हो गई तो इमीडिएटली वो एग्जीक्यूशन में भी जा सकता है, अदरवाइज वो रेडी में जाएगा और रेडी में जाकर फिर से एग्जीक्यूशन में आ सकता है। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर नरेट की है। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट भाई अभी? हाँ, अभी यहाँ अगर आप रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम अगर यहाँ यूज कर रहे हो तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ये सारी चीजें आपको पता ही है, डॉर्मेंट, रेडी, रनिंग और आईएसआर और वेटिंग। ओके, जो सर्कल के द्वारा यहाँ पर बताया है और जो लाइन है जो एरो के द्वारा बताई है उसमें उसके फंक्शंस भी दिए हैं, यानी अगर आपको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करनी है तो आप इन फंक्शंस का यूटिलाइजेशन कर सकते हो, और इन फंक्शन का यूटिलाइजेशन करके अपने को वहां पर
प्रोग्राम लिखना पड़ता है। तो जो प्रोग्राम आप लिखोगे वो प्रोग्राम आपका वहाँ टास्क या टास्क रूटीन, आईएसआर रूटीन या रेडी रूटीन, वेटिंग, डॉर्मेंट या फिर रनिंग रूटीन में वो पर्टिकुलर सिचुएशन वहां पर आ सकती है। ओके, इतने सारे फंक्शंस अपने को वहां पर यूज करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप आरटॉस यूज कर रहे हो तो दिस फंक्शंस आर रेडीली गिवन बाय द आरटॉस। ओके, you don't need to remember it. Okay, directly you have to assign the variable in that function and you have to assign the value only. बस वहां पर आपको कोई वहां ये कोड लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं रहती है। गेटिंग एवरीवन? ये टास्क तो यहाँ पर बताया है कि भाई टास्क कैसे एग्जीक्यूट होता है। ओके, तो मैं यहाँ पर ये टास्क यहाँ आगे यहाँ उसके साथ साथ ये मैनेजमेंट यहाँ ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो को अभी यही एंड करता हूँ। ओके, तो ये वीडियो को यही एंड करता हूँ और ये यही आप वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो को मैं यहाँ सेंड करूँगा, उसमें आगे कंटिन्यू करूँगा। ये सारी बातें जो आगे की जो स्लाइड्स है वो सारी वहां पर कंटिन्यू करूंगा। टिल देन वेट फॉर दैट। ओके, तभी तक आप यहाँ पर आपका अटेंडेंस आपके रोल नंबर के साथ, नाम के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो वीडियो यूट्यूब में शेयर किया गया है वो कंटिन्यूसली ट्रैक भी होता है, तो वो कंटिन्यूस आपका वॉचिंग भी होता है कि आपने कितने देर तक इस वीडियो को देखा है। ये सारी सिचुएशन वहां पर ट्रैक भी होती है। ओके, सो दैट्स व्हाई कंप्लीट वॉच करिए वीडियो को और वहां पर लाइक और शेयर करना मत भूलिए आपके फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन।